دین حق کی شک کے اوپر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شک کے اوپر ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور تعالی اللہ جہاں میں آج رب کے وہ نبی آئے جو ہر غمگین دل کے واسطے بن کر خوشی آئے۔ وہ دیکھو کفر کے گھنگھور بادل خود لگے چھٹنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد لے کے مکے میں یہ کیسی روشنی آئے، محمد لے کے مکے میں یہ کیسی روشنی آئے۔ محترم حضرات، ملاحظہ فرمائیں، اللہ رب العزت پاک و پروردگار عالم زندگی میں بندگی ڈالنے والا رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ پہلے والوں پر روزہ فرض کیا، جیسا کہ پہلے والوں پہ روزہ فرض کیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندوں میں سے شمار کیے جائے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندوں میں سے شمار کیے جائے۔ تو غور کرو اے مسلمانوں، روزہ کی فرضیت رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ پہلے والوں پہ روزہ فرض کیا گیا۔ پہلے والوں سے مراد پیغمبر ہے، پہلے والوں سے مراد نبی ہے، رسول ہے، امتی ہے بات پیغمبر کی۔ تو پہلے والوں پہ روزہ فرض کیا گیا تو تاکہ تم بھی روزہ رکھو، متقی اور پرہیزگار بندوں میں سے شمار کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روزہ آپ کے جسم کا زکوٰۃ کا ہے۔ کیا سمجھے؟ جیسے مال کا زکوٰۃ نکال دیا جاتا ہے، اور مال کا زکوٰۃ نکال کر کے جس بندے کے اوپر اگر اس کے پاس مال ہے، اگر وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت رکھتا ہے، یا اتنا سامان ہے، اخراجات اگر وہ بیچے گا تو اتنا پیسہ ہو جائے گا، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا۔ اب وہ اس کے پاس جو بھی ہے اس کا وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر وہ اس کے پاس پیسے ہے تو پیسے کا زکوٰۃ نکالے گا، اگر وہ اس کے زیورات ہے تو اس کا زکوٰۃ نکالے گا۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو بتا دوں، اگر اس کے پاس اگر 50,000 ہے تو 1250 روپیہ نکالے گا، 1 لاکھ ہے تو 2,500 روپیہ نکالے گا، اگر 2 لاکھ ہے تو 5,000، اگر 4 لاکھ ہے تو 10,000، اسی طرح 8 لاکھ ہے تو 20,000، اسی طرح وہ نکالتا چلا جائے گا۔ غور کرو اے مسلمانوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یعنی جو 2.5 روپیہ سینکڑا کے اعتبار سے نکالا جاتا ہے، اس سے اوپر آپ جوڑتے چلے جائیے۔ 2.5 روپیہ سینکڑا یعنی 40,000 میں 1,000 اور 1 لاکھ میں 2,500، اسی اعتبار سے جتنا آپ کے پاس دولت ہے اسی دولت کے اعتبار سے آدمی نکالتا ہے مال۔ اب سنیے، مال جب نکالا جاتا ہے، ہر مسلمان جب وہ مالک نصاب ہوتا ہے، اپنے مال سے جب وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو رب کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال حلال ہو جاتا ہے۔ اب وہ مال ناجائز نہیں رہتا ہے۔ بتاؤ، تم کماتے ہو، تم محنت کرتے ہو، تم سب کچھ کرتے ہو، لیکن تمہارا کمائی تو ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں نکالے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ غور کرو اے مسلمانوں، اس سے پتہ چلا کہ اسلام کتنا طریقہ اچھا دیا ہے کہ اگر مالدار ہے تو اس مال سے اپنا زکوٰۃ نکالے گا تو غریب بھی مالدار ہوتا ہوا نظر آئے گا، غریب بھی خوشحال ہوتا ہوا نظر آئے گا، غریب بھی کپڑا پہنتا ہوا نظر آئے گا، غریب بھی رزق کو پاتا ہوا نظر آئے گا، غریب بھی کھانا کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر مثال کے طور پہ اگر 50 مسلمان ہیں اور اگر 25 مسلمان اگر وہ مالدار ہے تو وہ 25 مسلمان جب وہ اپنا زکوٰۃ نکالے اور 25 مسلمان کو دیے جو غریب ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے لائق ہیں، تو قسم خدا کی 50 مسلمان مالدار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، خوشحال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کتنا اچھا طریقہ، یہ رب کا فرمان ہے۔ اے مسلمانوں، غور کرو، اس لیے اسلام کا طریقہ اور یہی نہیں ہے جس مال کا زکوٰۃ نکال دیا جاتا ہے تو اس مال کا مالک تم نہیں
बल्कि रब ताला खुद हो जाता है। रब ताला, इसलिए प्यारे आका मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार खुद फरमाते हैं कि जिस माल का ज़कात बंदा निकाल देता है उसका माल, उस माल का मालिक खुद परवरदिगार हो जाता है। अगर उस माल के मालिक उस माल से अगर कोई छीन लिया या अगर कोई चोरी कर लिया तो मैदान हश्र में उससे पूछा जाएगा। रब फरमाएगा तूने माल मेरा क्यों ले लिया? तो कहा नहीं ये रब ताला ये तो फला बिन फला का है। तो कहा नहीं ये मेरा माल है। इसलिए जिस माल का ज़कात बंदा निकाल देता है उस माल का मैं मालिक हो जाता हूँ, उस माल का मैं मुहाफिज हो जाता हूँ। तो आए मुसलमानों, लोग कहते हैं तिजारत में हमें फायदा नहीं हो रहा है, बिजनेस में हमें फायदा नहीं हो रहा है, एक से एक हम काम कर रहे हैं लेकिन उसमें फायदा ही नहीं हो रहा है, घाटे में घाटा हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मैं इतना दाम लगाया लेकिन नुकसान पे नुकसान हो रहा है। कसम खुदा की कभी ज़कात निकालते वक्त तूने हिसाब किया है कि हमारा माल इतना है, मैंने इतना ज़कात निकाला है, अगर इतना कमी है तब वो माल में नुकसान आएगा तो कोई गारंटी नहीं है। अगर जिस माल का ज़कात अगर मुकम्मल तौर पर नहीं निकलेगा, अगर माल का नुकसान होगा तो ये रब की और किसी की कोई ये नहीं है कि उसमें, इसलिए कि उस माल में फायदा नहीं देना है बल्कि उस माल में नुकसान ही होना है, उस माल में नुकसान हो रहा है। और करो ऐ मुसलमानों, इसलिए ऐ मुसलमानों माल का ज़कात निकल जाएगा तो उस माल का मुहाफिज रब ताला हो जाएगा। बड़े बड़े आज भी बम्बे के मेमन जो सेठ हैं जो हजारों नहीं अरबों में वो कारोबार करते हैं लेकिन उनका कबूल कारोबार अगर नुकसान होने लगता है तो वो अपना हिसाब लगाने लगते हैं, क्या मैं अपने माल में ज़कात तो कम नहीं निकाला है? बताओ, इतना यानी कॉन्फिडेंस है, इतना उनको इतना उनको उनको भरोसा है इस्लाम पे कि जिस माल का ज़कात निकाल दिया जाता है कसम खुदा की वो माल में नुकसान नहीं होता है, वो तजारत कभी घाटे का नहीं होता है, वो तजारत कभी घाटे का नहीं होता है। इसलिए वो कहता है कि नहीं, लगता है हम माल में ज़कात तो कम नहीं निकाले हैं, इसलिए हिसाब लगाओ। और जब हिसाब लगाता है तो देखता है कि कहीं ना कहीं से ज़कात में कमी आ गई है तो कहा फौरन वो ज़कात अदा कर दो। कसम खुदा की यही वजह है कि हमारे माल में नुकसान हुआ है, हमारे तजारत में नुकसान हुआ है। तो आए मुसलमानों, आप न सोचो कि हमारे पास 50,000 है और अगर हम 1250 रुपया दे दिया तो मैं नुकसान में पा जाऊंगा। कसम खुदा की 1250 रुपया दे करके उस माल को आपने मुहाफिज, उस माल को आपने बात कर लिया, आपने लिए हलाल कर लिया, तजारत के लिए हलाल कर लिया। अब वो करोगे तो कहीं ना कहीं से आपका नुकसान नहीं होगा, कसम खुदा की फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुसलमान उसको ऐसे अंदाजे दे देते हैं कि हमारे माल ऐसा है, ऐसा दे दिया, ज्यादा दे दिया, कम नहीं, बल्कि नहीं, जोड़ो और उसका निकालो मुकम्मल तौर पे। अगर ज्यादा देना है तो अलग से दे दो, अलग चीज है, लेकिन मुकम्मल तौर पे ज़कात निकालना जरूरी है। जिस तरह जिस्म का ज़कात रोजा है उसी तरह माल का ज़कात निकाल दियो, माल पाक हो जाता है। और जिस्म को आया रोजा रखिए तो जिस्म पाक होता हुआ नजर आता है। ऐ मुसलमानों, अमेरिका का एक, जिसका नाम भूल गया हूं मैं, वो डॉक्टर जिसको सबसे बड़ा अवार्ड मिला, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड, और ज्यादा दिन तक की बात नहीं है बल्कि 10 या 12 साल हुए, उससे पहले भी बात आई थी, लेकिन ज्यादा दिन के बात नहीं। गौर करो, अमेरिका को उस डॉक्टर को जिसको अवार्ड दिया गया था कैंसर के बीमारी के लिए, उसको दवा तैयार करने के लिए कहा गया था कि खोज करो, अगर दवा ना तैयार हो तो कोई कमियां, कोई चीज ऐसी है जिसे करने से कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए, जिसको खाने से कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए, जिसको रखने से कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए, वो चीज तलाश करो। तो डॉक्टर 1 साल नहीं कई साल तक तलाशा और उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कैंसर का बीमारी का इलाज मिल गया है। लोगों ने जब उसे पूछा कि कैसे मिल गया है, वो कहां से मिल गया है, वो क्या करना होगा, तो कहा सुनो, साल में सिर्फ 1 महीना या 25 दिन अगर रोजा रखा जाए मुकम्मल तौर पे तो कैंसर की बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। तो बताओ, उससे पहले इस्लाम का क्या तरीका है कि मुकम्मल 12 महीने में 1 महीना रमजान का महीना मयसर होता है जिसमें सवाब ही सवाब है, और मुसलमान रोजा रखते हैं तो उनको कैंसर की बीमारी होना ही नहीं है। गौर करो मुसलमानों, यही वजह है क्या
रोज़ा रखो। अगर बीमारियों से सफाया, बीमारियों से पाक होना चाहते हो तो रोज़ा रखो। कसम खुदा की ऐ मुसलमानों, अगर दिल जमई के साथ रमज़ान मुबारक का एहतराम करेंगे तो रमज़ान खुद आपका एहतराम करता है, खुद आपके माल में बरकत अता फरमाता है, खुद आपके घरों में रहमत नूर की बारिश रब ताला अता फरमाता है। ऐ मुसलमानों, मुकम्मल तौर पे रमज़ान मुबारक का बेपनाह इससे मोहब्बत करो और इसके हर आदा को अपनाओ। कसम खुदा की जितना अपनाओगे उतना बुलंद वाला होगे। इसमें तो दुआएं बताओ, ये वबाएं आई हैं, परेशानियां आई हैं, मुसीबतें आई हैं, तो ऐ मुसलमानों गौर करो, मुसीबतें आई हैं, इस मुसीबत से बचने के लिए सबसे बेहतरीन रमज़ान मुबारक है जिसमें दुआएं मुसलमानों की कबूल होती है। 5 वक्त मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रख करके अफ्तारी के वक्त दुआ मांगे, सहरी के वक्त दुआ मांगे, कुरान की तलावत करके दुआ मांगे। ऐ मुसलमानों सुनो, इसमें हर जगह यहाँ 17 रमजान है जिसमें अल्लाह ताला इस्लाम की सबसे ज्यादा बुलंदी हुई है और इस्लाम का जो सबसे ज्यादा जंगे बद्र पहली मर्तबा जंग इस्लाम की हुई है जिसमें कामयाबी अल्लाह ताला ने अता किया है, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता किया है। कसम खुदा की ऐ मुसलमानों, रमजान मुबारक के महीने का एहतराम करो और ये वायरस या खात्मा जरूर होगा। इसलिए कि सुनो, मैं बता रहा हूँ कि मुसलमान जब जुल्म कर बर्बरियत करने लगता है, चुगलखोरी करने लगता है, अय्याशिया करने लगता है, नमाज को खजा करने लगता है, जब वो जुल्म बर्बरियत और अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है, जब एक दूसरे की बुराई करने लगता है, एक भाई का हक मारने लगता है, जब वो जुल्म कर बर्बरियत करने लगता है तो अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम कुरान में फरमा दिया है, मैं उनके ऊपर अज़ाब अता फरमाता हूँ, मैं उनके ऊपर अज़ाब और वबा फैला उनके जानों पे अता करता हूँ, उनके माल पे अता करता हूँ, उनके जिस्मानियत पे अता तरह तरह की बीमारियां देता हूँ। गौर करो ऐ मुसलमानों, तो जब जुल्म करोगे, जब हद से ज्यादा जुल्म बर्बरियत करोगे, जब नमाज को कजा करोगे, जब एक दूसरे का माल गसब करोगे, एक दूसरे की बुराई करोगे, एक दूसरे को मजाक उड़ाओगे, तो कसम खुदा की ये मुसीबतें आएगी। इसलिए दूसरे की तरफ नहीं बल्कि अपने गरीबान में देखें। दूसरा तो कह देता है कि फला बुरा है, लेकिन ऐ मुसलमानों, अपने गरीबान में देखें मैं कितना बुरा हूँ और एक दूसरे की बुराई ना करके एक दूसरे की तारीफ करो। ऐ मुसलमानों, एक दूसरे की तारीफ करो और अगर किसी का अंदर कमियां है तो लोगों के सामने नहीं बल्कि उसके तन्हाई में कह करके उसके कमियों को दूर करने की कोशिश करो। वो भी जानेगा कि हमको तन्हाई में कह रहा है तो वाकई में मेरा हमदर्द है, वाकई में हमारा दोस्त है। अगर इसे बुराई करना होता तो कौन के सामने कहता, लोगों के सामने कहता। वो भी जानेगा कि तन्हाई में अगर हमसे कहा है तो वाकई में हमारा हमदर्द है। तो आप एक दूसरे कमियों को और एक दूसरे को अच्छा सोचो। कसम खुदा की रब के बरगाह में दुआएं मांगोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं बल्कि कबूल करेगा। और वबा बीमारी से बचें, आप बीमारी से भी बचें। एक दूसरे से जो मास्क वगैरह ये सब है, ये बीमारियां जो फैली हुई है, वबा फैली हुई है, ये किस शक्ल में फैली हुई है इसके बारे में तहकीक तो नहीं है, लेकिन हाँ वबा है, वो चाहे जिस शक्ल में हो लेकिन वबा फैली हुई है, जाने जा रही हैं, चारों तरफ जाने जा रही हैं। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए अपने घरों में झंडा भी लगाया जाता है। पहले बुजुर्गों ने गाँव में देखा जाता था कि गाँव में कभी जानवर लेकर के गांव के बाहर लोग बाग में निकल जाते थे, काला जानवर होता था बकरा या बकरी, उसके बाद उसको जबा करके और उसके बाद बुजुर्गों के नाम से नजर किया जाता था, कोई 4 सहाबा के नाम से नजर करता था। आज भी देहातों में चले जाइए, बांसुड़ा में आज भी मामूल है, ये बांसुड़े में आज भी मामूल है कि साल में एक मरतबा वो जो है नजर किया जाता, कई गाँव में देखा गया है। तो वबा को दूर करने के लिए अपने घरों पे यानी झंडा पे 4 सहाबा का नाम लिख दीजिए, अहले बैत का नाम लिख दीजिए, घरों पे लगा दीजिए, कसम खुदा की वबा खत्म हो जाएगा। और बुजुर्गों ने गौसे आजम से और तमाम मुहद्दिसीन से साबित है, गौसे आजम से और तमाम मुहद्दिसीन से साबित है, तमाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से साबित है, सैयद सलार मसूद गाजी, तमाम बुजुर्गों ने कहा कि वबा को दूर करना है, अगर वबा को खात्मा करना है, बलाओं को टालना है तो सबसे बेहतरीन ये दुआ है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। यानी ये विर्द रखिए, यकीनन अपने घरों पे कागज पे लिख के दरवाजे पे लगा दीजिए, कसम खुदा की उस घर में वबा नहीं आ सकता। ये बुजुर्गों का तरीका है। और ये ली खमसतुन हमारे लिए 5 है, उत्फी बिहा बलाओं को टालने वाले,
खरल वबाइल हातिमा, यानी वबा को खात्मा करने वाले, अल मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हैं, वल मुर्तजा हजरत अली हैं, वबनाहुमा और उनके दोनों साहबजादे, वल फातिमा और हजरत फातिमा ज़ोहरा, दोनों साहबजादे से मुराद हसन हुसैन है। तल्ली खमसतुन उठी बिहा, हमारे लिए 5, इसको मैं लिखवा भी रहा हूँ, यानी उसको मैं छुपवा भी रहा हूँ कागज पे, हमारे पास आइएगा, वो चौकी के तौर पे अपने घरों पे लगा लीजिए। कसम खुदा की ये 5 नाम इतना अजबर ठोस है कि वबा नहीं आ सकती है। वबा से बचने के लिए विर्द भी रखिए, इससे या सलामों भी करते रहिए, या सलामों भी पढ़ते रहिए, और इंशाअल्लाह वबा से डरिए नहीं बल्कि बचाओ, जान की हिफाजत करना फर्ज है। अल्लाह तो हिफाजत करने वाला है। रमजानुल मुबारक में दुआएं कबूल होती है। कसम खुदा की, ऐ मुसलमानों, आप फिक्र न करें, जान की फिक्र न करें, हाँ बचने की फिक्र करें, लेकिन यह नहीं कि हम इससे खत्म हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला बचाने वाला है, सबको पैदा करने वाला वही है। अल्लाह ताला मुहाफिज है। अल्लाह जिस नबी के सदके में सारे आलम को पैदा किया है, जिस रसूल पाक के सदके में सारे जहान को पैदा किया है, ऐ मुसलमानों, वही में हाफिज है हमारा। कसम खुदा की, हर दौर में रमजानुल मुबारक में, हर दौर रमजानुल मुबारक में दुआएं कबूल होती है, बुलंदी मिलती है, इस्लाम को बुलंदी मिली है। ऐ मुसलमानों, इस्लाम की, और आज 17 रमजान को इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसमें फौकियत मिली है, इस्लाम को बुलंदी मिली है, इस्लाम को जीत मिला है। ऐ मुसलमानों, इस रमजानुल मुबारक में आप दुआएं करें जुम्मे के दिन कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया है, नरसिम्हानंद स्वामी जो इतना बड़ा बेहुदा और कुत्ता नहंजार है, बताओ, गौर करो है मुसलमानों, हर जगह, और बल्कि वकीलों से मिल करके मेमोरेंडम तैयार करके उसके नाम से हर मुसलमान को FIR करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। हम क्यों न करें? इसलिए जिस नबी के सदके में आज उस जमीन पे चलते हैं, जिस नबी के सदके में आज हम खाते पीते हैं, जिस नबी के सदके में आज हम बोलते चलते हैं, जिस नबी के सदके में आज पूरी दुनिया, पूरा जहान, पूरा संसार मिला है, नबी आखिर ज़मां के सदके में आज हमें करबार, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ नबी पाक के सदके में, उस नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो ऐ मुसलमानों, वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कुरान खुद अल्लाह फरमाता है, सूरह नून वाल कलम में देख लेंगे, नबी को वलीद इब्न मुगीरा ने एक मर्तबा पागल कहा था, मजनू कहा था, तो अल्लाह ने बल्कि गवारा नहीं किया, कहा मुस्तफा इसे बुलाओ और इसके जितने ऐब हैं मैं बता रहा हूँ, आप बता दो इसे, मैं बता रहा हूँ। तो वलीद इब्न मुगीरा को बुलाया, कहा कि तुम शराबी हो, जुआरी हो, जनाकार हो, ये हो, वो हो, 9 ऐब को गिनाया जो वलीद इब्न मुगीरा खुद जानता था, और कहा 10वां ये कि तुम बोलो जना, हरामी हो, तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था। गौर करो, वलीद इब्न मुगीरा को तहकीक करना था, 9 ऐब तो था। अपने माँ के पास जाता है, सीने पर सवार होकर कहता, माँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मैं गालियाँ जरूर देता हूँ, लेकिन जो जबान से उनकी बात निकलती है वो गलत नहीं है। गौर करो है मुसलमान, अल्लाह वो वलीद इब्न मुगीरा ने कहा, क्या मैं अपने बाप से नहीं हूँ? तो कहा, अपने बाप से अगर होते तो तुम सीने पर सवार नहीं होते, अपने बाप से होते तो अपने माँ के सीने पर सवार नहीं होते। तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था, एक चरवाहे से मिली थी जो तुम पैदा हुए हो। तो बताओ, जो नबी के शान में गुस्ताखी करे उसको समझ लो वो हरामी है, वो तहकीक है, वो कोई और नहीं कह रहा है बल्कि रब कुरान में कह रहा है। जो नबी के शान में गुस्ताखी करे उसके असल में खता है, उसके असल में खता है, समझ लेना। तो उसे जलील करना, जलीलो खार करना, उसे हर तरह से। और आज दुआएं करें कि सलमान रजा अजहरी जो मुबाहिले के लिए दिल्ली जा रहे हैं, और अगर वो परमिशन मिल जाता है तो आग जलाया जाएगा। बताओ, गौर करो, यानी एक सुन्नी मुसलमान ईमान वाला मुबाहिले के लिए अगर उसे कामयाबी अल्लाह अता फरमा दे, वो जा रहा है, यकीनन अगर इजाजत हुकूमत दे देती है तो कामयाबी इस्लाम को मिलेगी, कामयाबी मुसलमानों के मिलेगी, कामयाबी नबी के दीवानों को मिलेगी, और नबी के दुश्मन जलीलो खार होंगे। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल